السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماڈیول نمبر 3 پارٹ نمبر 14 آج میں آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور آج ہم جرمنی کا پارٹ 2 جس کے اندر ہم کونز یعنی کہ نقصانات کہ ہمیں وہاں پہ کام کرنے کے اور کیا کیا نقصانات ہمیں اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ مائنر سے اگر مسٹیک ہوگی اس نے سمپل یہ کہنا کہ بھائی مجھے آپ پیسے واپس دے دیں، یا اگر آپ فیوچر کے اندر جب آپ سے میں فری لانس مارکیٹ پلیسز کے اوپر کام کرواؤں گا جہاں پہ کلائنٹ آئے گا وہ آپ کو بیڈ ریویو کر دے گا اس مارکیٹ پلیس کے اندر، تو آپ کا کریئر ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ آج کی ویڈیو یہ فیصلہ کر دے گی کہ جرمنی کے اندر آپ لوگ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں تو آپ کو کون کون سی مشکلات اٹھانی پڑیں گی اور کیا فائنل سجیشن ہوگی کہ وہاں پہ آپ لوگ آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا برانڈ بلڈ کر سکتے ہیں۔ پیسے ہوں گے تو آپ لوگ خود کریں گے، اگر نہیں ہے تو آپ لوگ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ، ایز اے سروس پرووائڈر جب ہم لوگ کلائنٹ ہنٹنگ کریں گے تو وہاں سے ہم لوگ جرمنی کے کلائنٹ لے کے آئیں گے، ان کے ساتھ کام کریں گے اور ان کی یورو کے اندر انکم جنریٹ کرنا شروع کروا دیں گے، تو اس کا بھی برانڈ بلڈ ہو گیا، آپ کا کام بھی چل پڑا۔ اگر آپ سیلر ہے تو آپ نے ان چیزوں کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا ہے کہ کیوں جانا چاہیے کیوں نہیں جانا چاہیے، اور اگر آپ ورچوئل اسسٹنٹ سروس پرووائڈر ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور غور سے سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ فیوچر کے اندر جب ہم فری لانس مارکیٹ پلیسز کے اوپر اپنے اکاؤنٹس کریٹ کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ اگر کوئی جرمنی کا کلائنٹ آیا وہاں پہ آپ سے ہلکی سی غلطی ہوگی تو آپ کو وہ بیڈ ریویو کرے گا اور آپ کا کریئر بنا بنا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کو خاص طور پہ غور سے سننا ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس یونائٹڈ کنگڈم تو آسان ہے، جرمنی بھی آسان ہے، مشکل ہے تو سب کچھ مشکل ہے۔ ہم نے کام یو ایس اے یو کے میں نہیں کرنا، ہم نے پوری دنیا میں کام کرنا جہاں پہ Amazon اپنی مارکیٹ پلیس کو اون کرتا ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ کونز آف سیلنگ آن جرمنی فار یو، آپ لوگوں کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 1، جرمن لینگویج بیریئر۔ جرمنی میں لسٹنگز اور PPC کے لیے پراپر جرمن ٹرانسلیشن اور لوکلائزیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ انگلش لسٹنگ کنورژن کم چلتی ہے۔ جرمن مارکیٹ پلیس کے اندر جتنے بھی کسٹمرز موجود ہیں جو Amazon کے اوپر پروڈکٹ خریدنے آئیں گے جرمنی کی مارکیٹ پلیس کے اندر، خاص طور پہ جو آپ نے پروڈکٹ لانچ کی ہوئی ہے وہاں پہ کسی کو انگلش لینگویج آتی ہے، کسی کو جرمن لینگویج آتی ہے، کسی کو دونوں لینگویجز آتی ہیں۔ تو جرمنی کی مارکیٹ پلیس کے اندر ہم نے صرف اور صرف انگلش لینگویج کو نہیں چلانا، ہم نے وہاں پہ جرمن لینگویج کو بھی چلانا کیونکہ وہاں پہ جرمن زبان بولی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہائی ریٹرن ریٹ۔ جرمن کسٹمرز پروڈکٹ ایکسپیکٹیشنز پہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں۔ اگر پروڈکٹ ڈسکرپشن اور کوالٹی 100% میچ نہ کرے تو ریٹرن ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک گرافک ڈیزائنر ہے، گرافک ڈیزائننگ سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ انویٹیشن کارڈ بنانا جانتا ہے، اسٹمپ بنانا جانتا ہے، ٹی شرٹ پرنٹنگ کرنا جانتا ہے، مگ پرنٹنگ کرنا جانتا ہے، پھر وہ جا کے گرافک ڈیزائنر بنتا ہے۔ اس کی ڈسکرپشن کیا بتا رہی ہے کہ وہ گرافک ڈیزائنر ہے، وہ تمام چیزوں کو بنانا جانتا ہے، لیکن جب اس کو ہائر کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار چلو آپ پوسٹ بنائیں، اسٹمپ بنانا شروع کریں، آپ انویٹیشن کارڈ بنانا شروع کریں، وہ کیا کہے گا، بھائی مجھے صرف اور صرف تھمبنیل بنانے آتے ہیں۔ تو ڈسکرپشن کیا تھی کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں، تو جب اس سے کام کروایا گیا تو وہ کہتا ہے صرف اور صرف مجھے تھمبنیل بنانے آتے ہیں، تو وہ گرافک ڈیزائنر نہیں ہوا، وہ گرافک ڈیزائننگ کی سب نیش کے اندر ایک ایکسپرٹ ہوا۔ تو اس طرح ڈسکرپشن کے اندر آپ نے چیزیں براڈ نہیں لکھنی ہیں، جو چیز اس کے اندر موجود ہے جو آپ کسٹمر کو ڈیلیور کریں گے وہی آپ نے اس کے اندر نوٹ ڈاؤن کرنی ہے۔ ڈسکرپشن کے اندر آپ بڑا چڑھا کے کہیں جی یہ پروڈکٹ اس طرح ہے، یہ پروڈکٹ اس طرح ہے، وہ کہے گا اچھا جی یہ تو بہت اچھی پروڈکٹ ہے۔ جب کسٹمر اس پروڈکٹ کو بائی کرے گا وہ ڈسکرپشن پڑھ کے اگر خراب ہوئی تو وہ ریویو آپ کو خراب کرے گا، اور ریٹرن ریٹ ظاہر سی بات ہے آپ کا زیادہ بڑھ جائے گا، یہ نقصان ہوگا۔ لیکن اگر پروڈکٹ ہی 10 یورو کی ہوئی، 5 یورو کی ہوئی، 2 یورو کی ہوئی، 3 یورو کی ہوئی، وہ آپ کو ریٹرن نہیں کرے گا لیکن آپ کو بیڈ ریویو کر دے گا۔ کرنے والے کریں گے بھی، لیکن آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ ہی ایکسپینسو ہے 50 یورو کی، 70 یورو کی، 80 یورو کی، 100 یورو کی، تو وہ آپ کو ریویو بھی خراب کرے گا اور آپ کو ریٹرن بھی کرے گا، آپ کو ڈبل نقصان ہوگا۔ لیکن اگر پروڈکٹ ہی کم پرائس کی ہوئی تو وہ آپ کو ریٹرن نہیں کرے گا، کرنے والے کر بھی دیں گے، لیکن وہ آپ کو بیڈ ریویو ضرور کرے گا کہ آپ نے ڈسکرپشن کے اندر اتنا بڑھا چڑھا کے لکھا ہوا تھا کہ میری پروڈکٹ کے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ کہے گا یار کیا کمال کی اس کی پروڈکٹ ہے، لیکن جب اس کو ڈیلیور ہوئی وہ کہتا کہ یار اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اس چیز کو آپ لوگوں نے ضرور اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے کہ یہ کام کرنے سے آپ کو یہ نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ سو بیک ٹو دی پوائنٹ نمبر 3، کمپلائنس اور ڈاکومنٹیشن اسٹرکٹ ہوتی ہیں۔ CE مارکیٹنگ، EPR پیکیجنگ لا، وی اور ادر یورپ سرٹیفکیشنز مینڈیٹری ہوتی ہیں، اس کے بغیر لسٹنگ سسپینڈ ہو سکتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں کیا جو سسپینڈ کر سکتی ہیں،
आपको भी बता रहा हूँ और इनको भी बता रहा हूँ। इसको अब हम तफसीलन डिस्कस करते हैं। CE मार्क को पहले आप समझ लें, ये क्या होती है। CE मार्क एक सेफ्टी कंप्लायंस लेबल है जो यूरोप EU प्रोडक्ट पे लगाना मैंडेटरी होता है। अगर प्रोडक्ट CE डायरेक्टिव्स में आती हैं, किन प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टॉयज में, मेडिकल डिवाइसेस में, मशीनरी में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इन शॉर्ट PPE वगैरह। पर्पस क्या है, ये दिखाता है कि प्रोडक्ट EU की सेफ्टी, हेल्थ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉलो करता है। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर शिफ्ट होते हैं। EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैकेजिंग लॉ। ये क्या चीज होती है। जर्मनी के पैकेजिंग लॉ कहता है कि जो सेलर पैकेजिंग मार्केट में डालते हैं, कार्टून्स जिसको हम बॉक्सेस कहते हैं, पेटियां कहते हैं, पॉली बैग्स हो गए, बबल रैप हो गए, एक्सेट्रा, ये 3 से 4 चीजें आप लोगों ने उसको रिसाइकल और डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन, लुसाइड पैकेजिंग रजिस्टर्ड में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। एक ड्यूअल सिस्टम प्रोवाइडर के थ्रू लाइसेंस लेना पड़ता है। विदाउट EPR लाइसेंस अमेज़न जर्मनी लिस्टिंग ब्लॉक कर देता है। पॉइंट नंबर 2 भी आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। अब हम शिफ्ट होते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर। वी वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डायरेक्टिव। ये क्या चीज है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेल करते हैं तो वी रजिस्ट्रेशन लेना लाजमी है। पर्पस, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक की रिसाइकल और प्रॉपर डिस्पोजल इंश्योर करना। रजिस्ट्रेशन EAR रजिस्टर शिफ्टिंग ईयर में करना होता है। कॉन्स ऑफ सेलिंग ऑन जर्मनी मार्केट प्लेस के पार्ट 3 के अंदर भी थर्ड पॉइंट आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। अब हम शिफ्ट होते हैं पॉइंट नंबर 4 के अंदर। अदर EU सर्टिफिकेट्स एंड रिक्वायरमेंट्स, इसको अच्छे तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं। RoHS रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैज़र्डस सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लीड, मरकरी, कैडमियम जैसे हैज़र्डस सब्सटेंसेस की लिमिट। पॉइंट नंबर 2 रीच रजिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन, ऑथराइजेशन ऑफ केमिकल्स। अगर प्रोडक्ट केमिकल कंटेन करता है, फॉर एग्जांपल पेंट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स वगैरह, तो ये अप्लाई होता है। पॉइंट 3 फूड कॉन्टेक्ट मटेरियल, इन शॉर्ट FCM। अगर प्रोडक्ट फूड या ड्रिंक के कॉन्टेक्ट में आता है, फॉर एग्जांपल कप्स, बोटल्स, कंटेनर्स, तो ये सर्टिफिकेट जरूरी है। पॉइंट 4 टेक्सटाइल रेगुलेशंस, क्लोथिंग एंड फैब्रिक्स के लिए प्रॉपर लेबलिंग और मटेरियल डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। मैंने आप लोगों के सामने पॉइंट 3 के अंदर ये जो 4 चीजें इनको डिटेल से डिस्कस किया है, इसको आपने समझना है। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मौजूद ना हुए तो Amazon की लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है। अगर वर्चुअल असिस्टेंट है तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आप जर्मनी की मार्केट प्लेस के अंदर काम करें। क्लोथिंग हुआ तो हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर टॉयज होंगे, अगर मेडिसिन होगी तो हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कॉन्स ऑफ सेलिंग ऑन जर्मनी मार्केट प्लेस के अंदर आप लोगों ने पॉइंट 3 के 4 पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करनी है और आगे सेलर को इस चीज के बारे में बताना है। अगर नहीं बताएंगे तो आपसे वो पैसे वापस मांगेगा, कहेगा कि आपने मेरी प्रोडक्ट का नुकसान कर दिया। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 4 वैट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। जर्मनी में सेलिंग के लिए वैट नंबर प्लस OSS वन स्टॉप शॉप रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। प्रॉपर टैक्स फाइलिंग करना पार्ट ऑफ प्रोसेस है। कॉन्स ऑफ सेलिंग ऑन जर्मनी के पार्ट 4 के अंदर ये 3 बातें मजीद आपको समझने की जरूरत है। अब हम इसको तफसीलन डिस्कस करते हैं। पहली चीज है वैट नंबर इन जर्मनी। ये क्या चीज है। वैट वैल्यू एडिशन टैक्स नंबर जर्मनी और यूरोप में सेल करने के लिए मैंडेटरी होता है। इसका पर्पस क्या है। कस्टमर्स को जो सेल करते हो उस पर वैट चार्ज करना पड़ता है। अपने बिजनेस एक्सपेंस से जो वैट पे करते हो उसको रिक्लेम भी कर सकते हो। जर्मनी रिक्वायरमेंट, अगर आप अपनी इन्वेंट्री जर्मनी के Amazon FBA वेयर हाउस में स्टोर करते हैं या डायरेक्ट जर्मन कस्टमर को सेल करते हैं तो जर्मन वैट नंबर लेना जरूरी होता है। वैट नंबर इन जर्मनी आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब पॉइंट नंबर 2 को अच्छे तरीके से अब डिस्कस करते हैं। OSS वन स्टॉप शॉप रजिस्ट्रेशन, ये क्या चीज है। OSS एक सिंप्लीफाइड यूरोप वैट सिस्टम है। इससे आपको हर यूरोप कंट्री में अलग वैट रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक यूरोप कंट्री में रजिस्टर्ड होकर आप पूरे यूरोप सेल के वैट फाइल कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है। आप यूरोप कस्टमर में उनके अपने कंट्री के वैट रेट के हिसाब से टैक्स कलेक्ट करते हैं, फिर OSS रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स अथॉरिटी और वैट को रिस्पेक्टिव कंट्री तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जर्मनी में OSS के जरिए रजिस्टर्ड हो और फ्रांस में कस्टमर को प्रोडक्ट भेजो तो आप उस सेल को सिर्फ OSS फाइलिंग में डिक्लेयर करते हो। समझ आ गई आपको इस चीज की। ये टेक्निकल टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी, फिर ही आप जाकर जर्मनी की मार्केट प्लेस के अंदर कोई वर्किंग कर सकते हैं।
ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है और ना ही कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम के अंदर काम करते हैं, तो जर्मनी भी बिगेस्ट मार्केट प्लेसेस के अंदर इसका शुमार किया जाता है। अगर कोई क्लाइंट आएगा, सिंपली ये काम उसको कह देना कि भाई आप ये करवा लें, ये करवा लें। कोई भी टेस्ट जो आपको मैंने पहले बताए और अभी बता रहा हूँ और आगे बताऊंगा, आपने सारी की सारी चीज़ें उस प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज जो भी प्रोडक्ट बेचनी है, जो कैटेगरी जो प्रोडक्ट उस सर्टिफिकेट के अंडर आती है, तो आपने सिंपली वो सर्टिफिकेट आपने अपना जनरेट करवा लेना है। सिंपल OSS वन स्टॉप शॉप रजिस्ट्रेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब हम शिफ्ट होते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर। पॉइंट नंबर 3, टैक्स फाइलिंग मैंडेटरी प्रोसेस। जर्मनी में आपको वैट रिटर्न मंथली या क्वार्टरली फाइल करना होता है, प्लस एक एनुअल रिटर्न भी देनी होती है। OSS के साथ आपको क्वार्टरली OSS रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसमें सब यूरोप क्रॉस बॉर्डर सेल्स कवर होती हैं। अगर स्किप करेंगे तो Amazon आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है और जर्मन टैक्स अथॉरिटी आपको हैवी लगा सकती है। कॉज ऑफ सेलिंग ऑन जर्मनी पार्ट 4 को मैंने इन डेप्थ एनालिसिस करके समझा दी है और आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। सो बैक टू द पॉइंट। पॉइंट नंबर 5, इंपोर्ट ड्यूटीज और कस्टम क्लियरेंस। जर्मनी में इंपोर्ट के लिए HS कोड, इनवॉइसेस और करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। मिस्टेक पे प्रोडक्ट कस्टम में स्टक हो सकती है। कॉज ऑफ सेलिंग ऑन जर्मनी के पार्ट 5 के अंदर HS कोड और डॉक्यूमेंटेशन ये क्या चीजें हैं, अब हम इसको भी डिटेल से एनालिसिस करते हैं। HS कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड, ये क्या चीज है? एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कोड जो कस्टम क्लियरेंस के लिए यूज होता है। इसका पर्पस क्या है? प्रोडक्ट का टाइप आइडेंटिफाई करता है, प्रोडक्ट ड्यूटीज और टैक्सेस डिसाइड होते हैं। गलत हुआ तो शिपमेंट डिले हो सकती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट या फाइन लग सकता है। HS कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब हम पॉइंट 2 को डिस्कस करते हैं। कमर्शियल इनवॉइसेस, ये क्या है? सप्लायर का लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें शिपिंग डिटेल होती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, HS कोड अभी आपको मैंने बताया, ओरिजिन एक्सेट्रा। पर्पस क्या है इसका? कस्टम्स इसको यूज करके ड्यूटीज कैलकुलेशन करती है और प्रोडक्ट वेरीफाई करती है। गलती या मिसिंग हुआ तो कस्टम्स शिपमेंट होल्ड या रिजेक्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, कमर्शियल इनवॉइसेस भी आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। अब हम शिफ्ट होते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर, करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। अब हम इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इंक्लूड करता है बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, पैकिंग लिस्ट, इंपोर्ट लाइसेंसेस अगर रिक्वायर्ड हो, सर्टिफिकेट्स, CE, EPR, वी वगैरह प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से। लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशंस, ये दोनों चीजें मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको डिटेल से बता दी हैं। वी क्या है, EPR क्या है, CE क्या है, पहले मैंने आपको डिटेल से बताया था, अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको मेंशन कर दिया है। पर्पस, कस्टम्स प्रोसेस स्मूथ और लीगल हो। पहली चीज HS कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड। सेकंड चीज कमर्शियल इनवॉइसेस। तीसरी चीज करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ये 3 पॉइंट्स कॉन्स ऑफ सेलिंग ऑन जर्मनी के पॉइंट 5 के अंदर मैंने अच्छे तरीके से आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। सो बैक टू द पॉइंट। पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट, हाई लिस्टिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। जर्मन मार्केट में पुअर इमेज, वीक कॉपीराइटिंग या इनकम्प्लीट कंटेंट परफॉर्म नहीं करता। हाई क्वालिटी विजुअल और ऑप्टिमाइज कंटेंट जरूरी है। पुअर इमेजेस एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ये आपका काम नहीं है। कॉपीराइटिंग, ये भी आपका काम नहीं है। मैंने आपको बताया ये आपका काम नहीं है। आता तो सुभान अल्लाह है, आप उससे डबल पैसे चार्ज करेंगे। आप उसको कहेंगे कि भाई मैं आपको बेहतरीन सी पिक्चर्स बना के दूंगा। अगर पुअर पिक्चर्स हुई, आप PPC करेंगे तो उसका नुकसान होगा, लेकिन आपका ये काम नहीं है। आप वर्चुअल असिस्टेंट, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आप उसकी पिक्चर्स इमेजेस बना के देंगे। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर या कॉपीराइटर हैं तो आप उसकी बेहतरीन सी कॉपीराइटिंग करके देंगे, उसको टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीजें बना के देंगे। इसलिए पुअर इमेजेस, वीक कॉपीराइटिंग, ये दोनों चीजें अगर होंगी तो लिस्टिंग को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पैसे लगा दे धड़ाधड़, रिजल्ट नहीं निकलने वाला। ये 2 चीजें अगर वैल्यू एडिशन इसके अंदर करेंगे तो आप 3 जगह से पैसे कमा सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट होगी, पैसे कमा लेंगे। फोटोग्राफर है, पुअर इमेजेस के भी पैसे कमा लेंगे। अगर कॉपीराइटिंग आती है तो आप वीक कॉपीराइटिंग को स्ट्रॉन्ग कॉपीराइटिंग में तब्दील करके तब भी पैसे कमा लेंगे। ये 3 चीजों के पैसे आप सेलर से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन बात क्या बताई जा रही है कि पुअर इमेजेस हो, वीक कॉपीराइटिंग हो, नुकसान का बायस बनेगी अगर ये मौजूद हुई प्रोडक्ट के अंदर। मैंने आप लोगों के सामने कॉन्स ऑफ सेलिंग ऑन जर्मनी डिटेल से डिस्कस किया है। वीडियो अगर पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआ में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी,
अल्लाह हाफिज़। एक और बात आपको मैं बता दूं, जर्मनी का पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको हंटिंग क्राइटेरिया और प्रोज यानी कि फ़ायदे बताए थे। पार्ट 2 के अंदर आज जो आपके सामने मैं रिकॉर्ड करूं एज सून एज पॉसिबल आपके सामने जो पहुंच जाएगी वीडियो, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स यानी कि पार्ट 2 आपके सामने मैंने डिस्कस किया जो अभी आप देख रहे हैं मुझे। पार्ट 3 के अंदर हम लोग एक्सपर्ट टिप्स के ऊपर बात करेंगे। जर्मनी का सेलर हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, ये तीनों अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर लें कि ये 3 पार्ट देखेंगे जर्मनी के अंदर कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं देखेंगे तो नाकाम आप हो जाएंगे। यूएसए का अलहदा बताया, यूके का अलहदा बताया, जर्मनी का अलहदा अभी आपको मैंने बता दिया। पार्ट 2, पार्ट 1, 2, 3 अच्छे तरीके से आप देख लेंगे। ट्रांसलेशन का बताया, टेक्स्ट का बताया, क्यों जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, कितना मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें, कोई चीज़ें मैंने मिस नहीं की। जो लेटेस्ट 2025 का क्राइटेरिया है वो आपको मैंने बता दिया है, और जो अमेज़न की अपडेट्स हैं उनको मेंशन करके आपके सामने मैंने डिस्कस किया है। तो जर्मनी को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।